ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ تہمینہ ملک اور میرے ساتھ ہیں سونی رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام نئی صبح. جی تو ناظرین، ہر روز کی طرح آپ کے لیے ہم ایک جو نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آپ کی جابس کے حوالے سے ہے. جی تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے اپنی جاب کو لے کر بہت پریشان رہتا ہے اور کبھی کبھار آپ کو جو ہے جابس اچھی مل جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا نہیں ہو پاتا کہ آپ جو ہے اچھے مقام پر پہنچنے کے لیے آپ کو بڑی سیڑھیاں جو ہے عبور کرنی پڑتی ہیں. جی سونی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج کے دن کا آغاز ہو چکا ہے، جیسے کہ تہمینہ نے آغاز کر دیا ہے. آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا میسیج ہے. میسیج آف دی ڈے تو ہم اینڈ پہ دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ جابس کے حوالے سے ایک چیز یاد آئی ہے، وہ یہ ہے: مذاق وہ ہوتا ہے جو کسی کو برا نہ لگے. مذاق وہ ہوتا ہے جو کسی کو برا نہ لگے. کسی کا دل اچھلنی کر دینا وہ مذاق نہیں ہوتا. تو آپ لوگ اوائڈ کیا کریں کہ اس طرح کے مذاق نہ کریں کہ کوئی ہرٹ ہو جائے اور آپ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مذاق ہوا، یہ تو ایسے ہوا، یہ دل پہ لے گیا. آپ جب بھی کسی کے ساتھ مذاق کریں دیکھیں کہ وہ بندہ برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ایک لمٹ پہ رہ کے کریں کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور آپ کا مذاق بھی ہو جائے. اور سادہ الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ کسی کی دل آزاری، سادہ الفاظ میں یہ بات کہہ دی جائے کہ کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، کسی کو دکھ نہ دیا جائے. تو دکھی جو انسان ہوتا ہے نا، اس کے نزدیک جو ہے نا رب تعالیٰ کی ذات بہت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بات ہے کہ کسی کو دکھی نہ کیا جائے، کسی کو جو ہے ڈی گریڈ نہ کیا جائے. آپ جس بھی فرقے یا جس بھی طبقے میں کام کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دوست احباب اور باقی لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں. بالکل جی تو آج کا ہمارا جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے جابس کے حوالے سے. جی سونی، آج کل کیا چل رہا ہے جابس کے حوالے سے، آپ کیا کہتی ہیں؟ پاکستان میں نوکریاں بہت کم ہیں، بہت ہی زیادہ نوکریاں کم ہیں. آپ کو ہر گھر میں تعلیم یافتہ لوگ ملیں گے. لوگوں کا جو زیادہ تر نثار ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم پہ بہت زیادہ پاکستان میں فوقیت دی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا بیک ورڈ میں ذرا چلے جائیں، بیک ورڈ ایریا میں جائیں تو وہاں پہ ہوتا تھا کہ تعلیم پہ اتنی نہیں تھی ہوتی. جیسے کہ زمیندار لوگ ہو گئے، جٹ وغیرہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں چلے تھوڑا پڑھ لیا، اس نے کیا کرنا، اپنے کھیت ہی سنبھالنے ہیں. اور لیکن اب ان لوگوں میں بھی یہ چیز آ چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تعلیم بہت ضروری ہے اور وہ دلوا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ پاکستان میں نوکریاں بہت کم ہیں، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، ہوار ہو رہے ہیں. میں نے بہت سے ڈگری ہولڈرز لوگ دیکھے ہیں جو کم سیلری کے لیے جاب کرتے ہیں اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے. میں نے بہت سارے ڈگری ہولڈرز کو رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے بہت سارے ڈگری ہولڈرز کو ٹھیلے لگاتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے بہت سارے ڈگری ہولڈرز کو سموسے بیچتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے بہت سارے ڈگری ہولڈرز کو اپنی ڈگری پاس رکھے ہوئے اور روڈز پر روتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے بہت سارے ڈگری ہولڈرز کو سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے دیکھا ہے. وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم سفارشات کی بنا پر لوگوں کو جو ہے جابس میں ہائر کر لیتے ہیں، لیکن ہم ایگزیکٹ پرسن کو نہیں چوز کرتے جس نے اس بارے میں اسٹڈی کیا ہوتا ہے، جس نے اس بارے میں ریڈ کیا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کسی کی بات ماننی چاہیے، کسی حد تک ماننی چاہیے، لیکن آپ کو چاہیے کہ جس کا حق ہے اسی کو ملے. اتنا پڑھا کر بھی ہم نے اگر رکشہ چلانا تھا تو ہم کیوں پڑھے؟ میرے خیال سے تہمینہ یہ ہونا چاہیے، آئی تھنک سو، کہ بندے کو کچھ ایسا کرنا چاہیے. آپ جاب ہولڈر ہیں، جاب لینے جا رہے ہیں، باس کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی آپ کا انٹرویو ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس بندے کو جاب دیں جو ڈیزرو کرتا ہو. ڈیزرو کرنے والے بندے کو پہلے پیورٹی دینی چاہیے، پھر آپ دوسروں کو دیکھیں. ہو سکتا ہے وہ کتنا کو نیڈی ہو اس وقت. ہاں، لیکن ایک اور بات بھی ہے سونی کہ سوری ٹو انٹرپٹ، کہ جب بھی آپ جو ہے کسی جاب کے لیے نکلتے ہیں، ایک چھوٹا سا کلو ہی ہے. آپ نے اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی پلیٹ فارم پر جا کے انٹرویو کرنا ہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی تیاری کے ساتھ جانا ہے. شیر بہادر وہی ہوتے ہیں جو بنا تیاری کے میدان میں کود پڑتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ نے کسی کو انٹرویو دینا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر غلط بھی بول رہے ہو تو بول دو، اگر نہیں بھی آتا تو بتاؤ. بالکل، سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ملے گا اور آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہوتا ہے ایٹ دا اسپاٹ بڑھتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کسی کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اگر وہ غلط بھی ہوتا ہے تو بھی صحیح لگتا ہے، کیونکہ آپ کا بات کرنے کا انداز کریکٹ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ایٹ دا اسپاٹ کس بارے میں بات کر رہے ہیں. نہیں پتہ چلتا تو بول دو.
ये जॉब्स की जब हम जॉब्स के इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं ना, हम बड़े कपकपाए से, बड़े डराए से होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस जो होता है आपकी धार होती है, आपका जो है समझ लें कि आपका वो औजार है आपका कॉन्फिडेंस। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तबके में आपको जॉब नहीं मिल सकती। अच्छा तहमीना, आप मुझे ये बताएं, इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यू हो रहा हो कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट? हाँ, कंफ्यूजन यही होती है कि इंटरव्यू में जब सामने वाला आपको क्वेश्चन करता है, अगर आपसे रिलेवेंट बात हो रही है तो आपको तो समझ आ जाती है, लेकिन अगर आपसे इररिलेवेंट बात हो रही है तो सम टाइम आप जो है ना अपने अपने जहन जो आपका मुहावजा होता है वो खो बैठते हैं। आपको समझ नहीं आता कि व्हाट आई डू एट द स्पॉट। तो फिर उस हवाले से भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन आपको बस इतना जो है नॉलेज होना चाहिए कि आप किसी भी जो है जगह में कूदने से पहले अगर आपने जो है तैयारी की है या नहीं की, मैं तैयारी करना कोई मैटर समझती नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने आपके अंदर किसी न किसी चीज़ का वो डाल दिया है ना कि ये तुम्हारे लिए है, ये इस जॉब के लिए, हाँ करना ही करना हाँ, इस जॉब के लिए तुम जा रहे हो, तो देन तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी है तो तुम जा रहे हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अच्छा तहमीना, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं ना, व्यूअर्स आपको भी पता होना चाहिए कि कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या होते हैं जब इंटरव्यू हो रहा होता है। तो हमारे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, जैसे आप मुझसे कोई सवाल पूछे तो मैंने अटक जाना ना, तो वो हमारे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं ना वो इस तरह होते हैं। कुछ लोगों के सम टाइम के वो लिपसिंग जो होते हैं ना, लिप्स को वो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं, मतलब खाना शुरू कर देते हैं। कुछ का ये होता है कि वो ये वाला जो बटन होता है, जो मेल्स होते हैं, फीमेल्स तो नहीं, जो मेल्स होते हैं वो इस बटन को ऐसे ऐसे मतलब कि प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं और ये आपके कंफ्यूजिंग पॉइंट है। उसके बाद फिर उन लोगों ने कुछ का होता है वो कफ को ऐसे फोल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी आप लोगों का कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि आप इस टाइम कंफ्यूज हैं। उसके बाद आपके फेस के तासुरात से पता चल जाता है, वो थोड़े से डल हो जाते हैं और सम टाइम ऐसे भी हो जाता है कि कोई पसीना वगैरह आ जाता है फेस पे, वो भी आपका कंफ्यूजिंग पॉइंट है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, नॉर्मल रहें, बिल्कुल पुरसकून तरीके से, ऐसे होगा जैसे आपको पता ही नहीं है, फुल रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद कुछ का ये होता है कि मतलब कि उन्होंने कान की ये जो होती है ना लू, उसको छेड़ना होता है, लू को छेड़ते हैं, वो ऐसे करते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये बंदा कंफ्यूज है। आपने इन चीज़ों पे गौर करना है। आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं इन पे ज़्यादा फोकस करें। इंटरव्यू देने जाने आप स्टिल तो नहीं चले, स्टिल बैठ जाए या रिलैक्स होकर बैठ जाए। देने के लिए जाए तो आप ऐसे समझेंगे अगले बंदे को आपसे ज़्यादा आता ही नहीं है, और अपने ये दो फिंगर्स हैं इनको आपने इस तरह करके बैठ जाना है कि आपका जो भी है ना कंफ्यूज ना हो और रिलैक्स रहे। और आपको पता है कि आप अब किसी भी इन्वायरमेंट में जब सोनी बैठते हैं ना, इवन दैट कि हमारे जो यूनिवर्सिटी लेवल्स थे, जो हमारे जो थे टीचर्स हुआ करते थे, हमें जब वो आके जो है लेक्चर डिलीवर करते थे तो उनमें भी सम टाइम कपकपाहट पैदा हो जाती है। तो हमारे टीचर्स जो है, मैं सम टाइम हम भी खुद भी जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो कपकपाहट होना शुरू हो जाती है, जब हम समझते हैं कि ये बंदा मेरे से बेटर जानता है, इसको मेरे से ज़्यादा पता है। लेकिन एक लेवल होता है जब आप पेंसिल हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ये पेंसिल की टिक टिक भी होती है। पेंसिल की टिक टिक जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये बंदा कंफ्यूज जा रहा है। पेंसिल की टिक टिक जहाँ पर हो रही होती है, इट्स मीन कि इसको या तो ये समझना नहीं चाह रहा, या इसको तो या तो फिर इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ का, या फिर इसके हवाले से ये बात है कि या हमें हमारी हॉबी है पेंसिल को टिक टिक करना, हमने शुरू से लिया उसको तो फिर हम टिक टिक ही करते आ रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि नाज़रीन आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि हर घर में मास्टर्स मौजूद है। जब हम यूनिवर्सिटी लेवल में थे तो बहुत ज़्यादा मास्टर्स थे। पहले पाकिस्तान में बैचलर की रेशो बहुत ज़्यादा थी, उसके साथ साथ अब मास्टर्स की रेशो बहुत ज़्यादा है और अब हर घर में एक स्कॉलर ज़रूर बन रहा है। और मैंने देखा है कि बहुत से स्कॉलर्स हैं, ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि हम बस स्कॉलर बने, PhD करें, सबका यही है। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कुछ 5 साल तक आपको हर घर में PhD होल्डर मिलेगा इंशाल्लाह। और लेकिन जॉब्स बहुत कम है, लोग बहुत जलील होते हैं जॉब्स के लिए। इस टॉपिक पे हम बात करते रहेंगे, लेकिन हम अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। किस तरह लोग जॉब्स लेते हैं, कंसल्टिंग में वो भी पैसे लेते हैं, क्या तरीका है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। वेलकम बैक नाज़रीन।
जी, तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था आपकी जॉब्स के हवाले से। जी, तो नाज़रीन, जॉब्स के हवाले से देखा जाए तो आपकी जो सीवी होती है वो भी बहुत मैटर करती है। आजकल जो है हमारे जो मॉडरेट बच्चे हैं वो लेटेस्ट सीवी जो है वो लेकर नहीं जाते। इस हवाले से भी थोड़ी-थोड़ी मुश्किलात दरपेश आती रहती है। बिल्कुल सोनी, प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए। समटाइम्स कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं अब फीमेल्स खास तौर पे वो अपनी जो तस्वीर होती है ना वो सीवी के ऊपर नहीं लगाते, अपडेट नहीं करते। आपका जितना जितना एक्सपीरियंस होता है, अगर आप फ्रेशर हैं फ्रेश सीवी बनाएं लेकिन प्रोफेशनल हो। अगर आप पहले से जॉब कर चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस है, उसको अपडेट करते रहें। जो भी आपने जॉब करनी है, आप जो भी जॉब करना चाह रहे हैं, आपने उसी तरह की अपनी सीवी को अपडेट कर लेना है और अपनी सीवी को अपने मोबाइल में रखें। आपके मोबाइल में हो, आप जहां भी जॉब करने जाएं, जॉब या इंटरव्यू के लिए जाएं तो उसको अपडेट अपडेट कर दें प्रोफेशनल सीवी को। और उसके साथ साथ जॉब्स जो है, और आजकल जो है आपके तो मोबाइल में भी इंटरनेट्स वगैरह होते हैं, अपने मोबाइल के थ्रू भी अपनी सीवी को अपडेट किया जा सकता है और उसको ऑनलाइन भी रखा जा सकता है। बिल्कुल। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती आपको। सिर्फ जो जैसे कि आजकल आज से जो है 15-20 साल पहले लोगों को जो है जुबानी अपनी चीज़ें लिख के रखना पड़ती थी। जैसा कि आपके पास रोजी ऐप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, रोजी डॉट हो गया, रोजी डॉट पी के, उस पर आप जॉब देखते रहें। कंफर्म है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मिलती जॉब, रोजी डॉट पी के पे जॉब होती हैं। अगर वो आपके पास लिंक है तो आपको कंफर्म जॉब मिलेगी। आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने वो किस तरह करनी है, किस तरह आप जॉब हासिल करनी है। बस इरादा बना लें, ईमान मजबूत रखें। उसके साथ एक और है, लिंक्ड है, शायद लिंक्ड पे भी है, और भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जिनके मुझे भी नाम नहीं याद हैं। रोजी डॉट पी के है, लिंक्ड है, और भी काफ़ी ज़्यादा आप सर्च करते रहा करें। जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, जिन लोगों के पास जॉब्स हैं, लकी हैं। और उसके साथ एक और चीज़ है तहमीना, जो मैंने खुद देखी है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप हमारे ऑफिस आएँ, ऑफिस जाते हैं। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरा खुद ज़ाती तजर्बा है कि हम गए हैं कंसल्टिव के पास। जी, कंसल्टिव ने कहा कि मुझे आप 1000 पे कर दें, 1000 नहीं तो 2000 पे कर दें, आपको ना जॉब दिलवा देंगे। चले जी, ठीक है, कुछ लोग पे कर देते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कंसल्टिव को ही हमने पैसे देने हैं जॉब के लिए, तो फिर हम धक्के क्यों खा रहे हैं? फिर सीधा उसी कहते हैं भाई हमें लगवा दे। क्या और हमारी उन लोगों का ये हमारी डिग्रीज की यही वैल्यू रह गई है यहाँ पर कि आपने जो है हमें खरीदना है, हमें आपको खरीदना पड़ता है पैसे देकर। आप हराम खाते हैं, जो हमारे सरों पे बैठे हैं, आपको हराम ज्यादा रास आता है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो हराम खाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हराम कितनी देर तक आपके पेट में रहता है ये भी आपको पता है। आप अगर हराम खिलाते हैं तो ये कहाँ तक चला सकते हैं इसको, कहाँ तक आपके बच्चों के पेट में जाता है? क्या वो हलाली हो सकते हैं? कभी भी नहीं। अगर अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं आप क्या समझते हैं कि वो आपको हलाल करके देंगे, आपकी इज्जत करेंगे? जैसे कि आपके बाप ने आपको हलाल खिलाया, आपको हलाल का रिस्क खिलाकर किसी मुकाम तक पहुंचाया और किसी जगह पर बिठाया, और आप क्या समझते हैं कि आप इस हराम के साथ जिंदगी सारी गुजार लेंगे? अगर आज इस जिंदगी को हराम के साथ गुजार रहे हैं तो कब्र में कैसे गुजारेंगे? और अच्छा, मजे की बात ये है तहमीना के वो जो कंसल्टिंग में 2000-3000 वो फी लेते हैं अपनी, और बेचते वो कॉल सेंटर में है। और वो जो कॉल सेंटर है ना, वो इंग्लिश कॉल सेंटर है जिनमें अलग अलग कंपेन होती हैं। ऑस्ट्रेलिया की होगी, यूएसए की होगी, यूके की होगी, मार्केटिंग होती है। उसके साथ ये जो मैंने खास तौर पे जो मैंने ट्रेंड देखा है, वो लाहौर में हफीज सेंटर, सदीक सेंटर, इस तरह के सेंटर है जहाँ पे इनके ऑफिस बने हुए हैं। और ये कंसल्टिव थोड़े पैसे लेते हैं और उसके साथ जॉब देते हैं। और कंसल्टिव का काम ये होता है, मैं कहती हूँ क्या इनकी तकनीक है, इधर से हमसे पैसे ले रहे हैं ना, आप जॉब प्रोवाइडर है, आप बॉस हैं, आपसे भी लेने हैं, दोनों तरफ से। आपका जो ऑफिस है उसका नाम चेंज कर दें, जॉब डीलर्स, इधर से भी हासिल करो, उधर से भी हासिल करो और अपना कारोबार चमकाओ। और मेरा आप लोगों को ये कहना है, हमारे देखने वाले व्यूअर्स को, कि अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, आपको कोई कहता है कि हमें पैसे दे, तो कभी भी आप पैसे ना दें। जितनी भी मजबूरी है, आप मजबूर होकर पैसे देंगे, कोई फायदा नहीं है। जॉब लें, अपने दम पे लें, पैसे देके कभी भी जॉब। अगर आप केपेबल है ना इस चीज के लिए, अल्लाह ताला ने अगर आपको चुन लिया है ना किसी चीज के लिए,
तो वो रब्बिजुल जलाल है, उसने हर चीज का वक्त रखा हुआ है। मत जाया करें ऐसे जाहिल लोगों पर अपना पैसा कि जो समझते हैं कि आपका 2000 उसके लिए हलाल है, आपने कैसे कमाया उसको उसकी कदर नहीं पता, लेकिन वो इंसान के रूप में भेड़िया है जो आपसे आपकी जॉब देने के एवज पे आपसे पैसे हासिल कर रहा है, गुनाह कर रहा है। आप उस गुनाह में खुद भी शरीक हो रहे हैं उसको पैसे दे के। खुदा ना खास्ता आगे जॉब चलती है नहीं चलती, आपका 2000 तो राह से गया है ना। आपको 2000 जो है अगर कहीं ना कहीं आपके घर में जरूरत पड़ जाती, वहां कहीं अच्छी जगह पर लग जाता, गलत जगह पर चला गया तो क्या फायदा। अच्छा तहमीना, मुझे आप ये बताएं, जॉब्स ठीक रहती हैं कि कारोबार ठीक रहता है? कहीं ना कहीं जॉब्स भी ठीक रहती हैं और कहीं ना कहीं कारोबार भी ठीक रहते हैं। जहां पर आपको लगता है कि आप निजी लेवल पर यानी कि छोटी सी दुकान से अपने घर का जो है सर्किट चला सकते हैं, आपका इन्वायरमेंट इतना है कि आप जो केपेबल समझते हैं उस चीज़ को कि आपका इन्वायरमेंट आपको जो है डेवलपिंग साइड्स पे लेके जा रहा है, तो आप एक छोटी सी जो है करियाना स्टोर से भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और बेशक अल्लाह पाक उसमें बरकत डालने वाला है और इंशाल्लाह एक छोटी सी दुकान से आप बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना सकते हैं। हाँ इंशाल्लाह, ऐसे ही एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात कह रही है। हमने लास्ट टाइम भी बिजनेसमैन के हवाले से बात की थी, कोई प्रॉपर जो है वो माँ के पेट से ही जो है बिजनेसमैन ही सीकर नहीं आता। यही छोटी छोटी जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, गिर कर उठता है उठकर गिरता है, यही आपको बिजनेसमैन बनाती है। और बेसिक जरूरत ये भी नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपने ज्यादा पढ़ लिया तो आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। कोई थर्ड क्लास बंदा भी जो है जिसने कभी किताब को देखा ही नहीं है, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन बन के बैठे हैं। मैंने ज्यादातर जो है ना कम पढ़े लिखे, हाँ, उन लोगों को बिजनेसमैन देखा। और आपको बताते चलो कि यहाँ पर डिग्रीज जो है दबी की दबी रह जाती है। ये मजा आता है उन लोगों में जिन्होंने एक्सपीरियंस के साथ, जिन्होंने मैंने एक दो दफा ये भी पढ़ा इस बारे में कि मैं अपने उस्ताद के साथ रहा करता था, क्या मैं कैशियर था उनका, तो आज मैं भी जो है एक रिजॉर्ट का मालिक हूँ। क्या हुआ, क्या सीखा, आपका एक्सपीरियंस, आपका देखना, आपका किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। ये आपको खुद भी पता नहीं होता कि एट स्पॉट आपके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, और देखो कितने मजे की बात है। मजे की बात ये है कि जो कम पढ़े लिखे बिजनेसमैन है, हम लोग डिग्री होल्डर्स, मास्टर्स, स्कॉलर्स वाले, उनके आगे काम कर रहे हैं। सैलरी 30, 35, 40, 50, इससे ज्यादा होती नहीं है। उससे कम आते तो 15 हो गई, 20 हो गई, उससे अब हम जा ही नहीं सकते। ये हमारा क्राइटेरिया है और हम लोग उन लोगों के आगे काम कर और रहे हैं। हम उन लोगों से, आप ये देखें कि उन लोगों ने हमसे काम किस तरह से निकलवाया, और हम उनको जो है बहुत ज्यादा अर्न करवा रहे होते हैं, हमसे लोग कमा रहे होते हैं। हालांकि जो हम उनसे कमा रहे होते हैं और बहुत कम होता है जो आपसे बेनिफिट लिया जाता है ना। कहीं वो कहते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम एक बात कोट की थी, पत्थर भी पड़ा ना अपनी वैल्यू बढ़ा लेता है। तो ये जो है इस हवाले से भी देखा जाए तो बात बड़ी खूबसूरत है। और जॉब होल्डर्स के लिए एक बात कोट करती चलूं कि आपके अंदर वो एबिलिटीज मौजूद है, अगर करेक्ट वक्त नहीं है ना उसका, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि आपको एग्जैक्ट वक्त पे आपको जॉब मिले। तो जब आपको नौकरी मिलती है तो दुनिया दिख आ जाती है। अगर बुरा वक्त है तो अच्छा भी आएगा। अगर उस मालिक ने बुरा वक्त में लाके खड़ा किया है तो अच्छा वक्त भी तो वो देगा। और आप देखें कि बुरा वक्त जो है ना वो कभी बुरा नहीं होता। बिल्कुल, उसमें भी बहुत आपको आपका बुरा वक्त लर्निंग के हवाले से देखा जाए ना तो बड़ा अच्छा वक्त, बुरे वक्त को बेसिकली अच्छा बोलते हैं। हाँ। और अच्छे वक्त को बेसिकली बुरा बोलना, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि कब बुरा आ जाएगा। क्योंकि कभी भी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि ऊपर चढ़ गए है ना, जो चढ़ के गिरता रहता है ना वो आदी होता है बुलंदियों से जो है नीचे की तरफ आने का। जो चढ़ जाता है ना वो यकदम गिरे ना तो वो फिर रहता ही कुछ नहीं, कभी अरूज पे कभी ज़वाल और कभी अरूज, यही जिंदगी है। और जॉब्स के हवाले से एक और भी टिप देती चलूं कि आप जो है जब आपको किसी इन्वायरमेंट में कैच कर लिया जाता है ना, आपको जॉब दे दी जाती है तो यकदम तो आपकी सुनी नहीं जाती, पहली बात ये है। और जो आपके सीनियर्स होते हैं ना, आपका असासा होता है, आपके सीनियर्स आपका असासा होते हैं। जब अपने सीनियर से आप लोग उनके साथ भी बैठ जाए ना तो 2 मिनट के लिए उनकी गुफ्तगू जो होती है ना, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वर्का होती है, पेज होती है, सफा होती है। वो क्यों होती है
कि जो उन्होंने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट्स किए होते हैं, अपने सीनियर से सीखा होता है, वही आपको सिखा रहे होते हैं। वो तजुर्बा होता है जो हम हासिल कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल। बताते हैं कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, और वो हमें सीखनी और हमें चाहिए। सीखनी चाहिए और ये हमें एक इसको करना कान से चाहिए। सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं देनी और चाहिए। वो सबसे बड़ा मैं कहती हूँ कि मैं उस बंदे के लिए क्या यूज करूँ कि जिसके पास आपकी सपोर्ट लाइन, गाइडलाइन मौजूद होती है और आप कहते हो कि आई डिडंट डू दिस, मैंने ये नहीं किया, क्यों, व्हाई, करें। यू हैव टू डू इट, आपको इसको करना चाहिए, और आप कर इसको सकते हैं। सकते हैं। और बहुत मजे की बात है कि जब आपके अंदर ये पावर होती है ना, आपके पीछे की कोई पावर होती है कि तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकती एक हो। थपकी है ये जो थप- हमें कामयाब कर देती थपकी है। क्या, ये इसको मुक्का भी बोल दिया जाएगा, थोड़ा कम है, बोल देते हैं। थोड़ा बोल देते हैं, ये कम है। और आपके अंदर की जो चीज है वो बाहर को आती है कि नहीं, मेरे अंदर कुछ ऐसा है, तो इस बंदे ने कहा कि तुम कर सकते हो और मैं कर सकता हूँ। और हम कर सकते हैं। अगर आज हम इस मुकाम पर हैं, अपने सीनियर्स की वजह से हैं। आज अगर हम बुड़बुड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अगर हम किसी को फेस कर रहे हैं, तो अपने सीनियर्स की वजह से हैं। और कुछ बातें आपको अपनी फैमिली से मिलती हैं, बिल्कुल। कुछ बातें आप, कुछ लोग होते हैं उसको पॉजिटिव वे में लेके चले जाते हैं और कुछ लोग होते हैं उसको नेगेटिव वे में लेके चले और जाते हैं। आप जिस इन्वायरमेंट में हैं, जिस भी माहौल में हैं, आप लोग सीखें। बुरा माहौल है लेकिन अच्छा सीखें, बुरा ना सीखें। आपको जैसा जैसा माहौल मिलता है, प्रोवाइड होता है, आप एक जगह पे टिक के जॉब नहीं कर सकते। ये होता है कि एक जगह पे कभी भी हम 22 या 25 साल नहीं गुजार सकते। हमें जैसे जैसे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हम लोग चेंज कर देते हैं और हमें अपनाना चाहिए। अगर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो उसको अपनाना चाहिए। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज है, वो ये है कि अगर आप मैट्रिक किया, आप लोगों ने साइंस में किया, उसके बाद आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप लोग जाना चाह रहे हैं, एफए करना चाह रहे हैं। एफए, सिंपल एफए करना कर लें, सिंपल एफए कर लें, लेकिन उसके बाद आप बीए ना करें, छोड़ दें। मार्केटिंग करें, मार्केट में मार्केटिंग करें, मार्केटिंग करेंगे, अपनी बाइक लें, इतना आप कमा लेंगे कि आप एक अपनी बाइक ले सकते हैं। उसके बाद बाइक के ऊपर स्टोर्स हो गए, मेडिकल स्टोर्स हो गए, बहुत सी शॉप्स हो जाती हैं, सैलून्स हो जाते हैं, आप उनकी मार्केटिंग करें और आप एक दिन नहीं, जॉब होल्डर जो होता है ना, वो 25 साल लगा देता है, उसकी ज़िंदगी का तजुर्बा होता है। और आप थोड़े से, बहुत कम अरसे में आप उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत और होती सोनी, है। आपको और पता है गाड़ी भी ले सकते हैं। उसको उसका घूमना, आप लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग करना और लोगों की जहनीत को समझना बड़ा आसान हो जाता है। एक मार्केटर खड़ा खड़ा बंदा पढ़ लेता है, इस बंदे में है क्या। तो आप उस चीज़ को फोकियत दें। अगर आप जॉब नहीं करना चाह रहे तो कारोबार करें, छोटा अच्छा, करें, एक और लेकिन बात यहाँ करें। पर ये भी आती है कि जॉब तो बेसिक नीड होती है ना, तो बात की जाए, अगर हम समटाइम ये भी सोच रहे होते हैं कि काश जहाँ मेरा बॉस बैठा हुआ है यहाँ पे मैं बैठा हुआ, तो उस काश को जो है ना, काश खत्म करके ना, बिल्कुल उसको बोलें कि एक दिन मैं यहाँ पर बैठूंगा या मैं यहाँ पर हूँगी। यही आपका जज्बा, आपने अगर सोच लिया ना कि मैंने जी लेमोजिन लेनी है, मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है, मैंने ये काम करना है, मैंने इसको सर अंजाम देना है, उस ख्वाब को अपने जहन में बिठा लें। जब आपका ख्वाब जो है आपके जहन पर हावी हो जाता है, देन आपके अंदर का जो वलवला होता है वो उभर कर आता है और आप उस गोल को अचीव कर पाते हैं। जैसे कि आप देखें कि अगर आपने सोच लिया है, आपने इस चीज़ को मान लिया है कि आज मेरा बॉस जिस जगह पे बैठा है, मेरा जो है जानने वाला जिस जगह पे बैठा है, मैं क्यों नहीं, मैं तो उससे ज्यादा जानता था, मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। हाँ, लेकिन आपका जज्बा आपको आगे लेकर आता है, आपका अंदर जो वलवला होता है ना, आपके अंदर की आग आपको उभारती है। और वो आग कैसे आती है, आपकी नीयत पाकीज़ा होनी चाहिए। क्या ख्याल है इस बारे में? जब आपकी नीयत पाकीज़ा होती है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो आपके हाथों में डाल देता है, आपको दिखा देता है वो रास्ता कि जहाँ पर आपने चलना होता है। तो ऐसे तो नहीं ना हदीस है कि अमल का दारोमदार नियतों पे है। हाँ, बिल्कुल ठीक ऐसे बात तो है। नहीं ना कि अगर आप अच्छा अमल करेंगे
आपकी नीयत अच्छी होगी तो अमल अच्छा होगा, अगर नीयत बुरी होगी तो अमल कहाँ से अच्छा हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसी बात और है। तहमीना उसके साथ ये भी है कि आपने नोट किया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग कितने पागल हुए होते हैं कि ये हो जाए तो जिंदगी सवर जाए। पहले कुछ अर्सा पहले भी एनटीएस के बारे में लड़कियां बड़ी पागल हुआ करती थी, लेकिन अब तो एनटीएस को खत्म किया गया ना, कुछ जॉब्स भी बैन है, लेकिन अब 3 साल के बाद पीपीएससी की तो सीट्स जो होती हैं वो 3 साल के बाद आती हैं। अब पीपीएससी की सीट्स आई हैं जिनमें लातादाद लोगों ने अप्लाई किया, पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। मुझे इस टाइम उनकी रेशो याद नहीं है, मैं लास्ट टाइम पढ़ रही थी, मैं अच्छी तरह याद था कोई 20 के लगभग होंगे। और मैं सोच रही थी इतने ज़्यादा लोग, इतने लोगों ने अप्लाई किया है। तो खुदारा मेरी तो यही दुआ है कि जो लोग मेरिट पे आए उनको जॉब मिले, रिश्वत सिफारिश ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी ना हो। जैसा होता है कि अब तो मेरिट की बिना पे, पहले होता था कि जो मतलब कि रिश्वत और सिफारिश होती थी, लेकिन अब मेरिट की बिना पे जॉब्स हो रही हैं। मेरिट अच्छा है तो जॉब मिल रही है, अगर मेरिट बुरा है तो जॉब नहीं मिल रही। और नाज़रीन इस टॉपिक पे हम बात करते रहेंगे मेरिट, रिश्वत और सिफारिश पे, लेकिन अभी हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह तहमीना मलिक और सोनी राना के साथ। जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे रिश्वत और सिफारिश और मेरिट पे। हाँ जी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि रिश्वत का बहुत जोर है। पहले होता था, अब ज़रा कम हो चुका है। अब का मैं नहीं कह सकती, रिश्वत और सिफारिश बहुत है। लोगों को जॉब्स मिलती हैं रिश्वत की बिना पर, सिफारिश की बिना पर। अगर कोई जो एईओ है या कुछ और है तो जी कहा जाता है कि आप हमें इतने पैसे दे दें आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, तो आप पैसे बिल्कुल भी ना दें, रहने दें। ऐसी जॉब से अच्छा है कि आप कोई काम कर लें, मजदूरी कर लें, मेहनत कर लें। हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन पैसे ना दें। अगर पैसे दे के जॉब करनी है तो मेरिट अच्छा कर लें। जो पेपर दे रहे हैं, पीपीएससी का पेपर दे रहे हैं जिसके लिए हम लोग 600 700 इतनी तो फीस होती है, वो डिपॉजिट करवाते हैं। वो करवाने के बाद हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके वो पढ़ लें और अच्छे नंबर लें। नंबर लेने के बाद आप लोग देखें आपका मेरिट बनता है, ठीक है। अगर आपने पैसे देने हैं तो ना दें, ना करें ऐसी जॉब, लानत डालें ऐसी जॉब पे। और उसके साथ ये है कि जो हमारा मजदूर तबका है। अच्छा, मैं मजदूर तबके से बात करना चाहूँगी कि आप देखें कि हमारे मजदूर तबका तो बड़ा मासूम तबका होता है, बहुत मासूम तबका होता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि चूल्हा जलाने के लिए हाथ भी फैलाना पड़ जाता है किसी से। घर के हालात ऐसे नहीं होते कि सम टाइम बच्चा बीमार हो जाए तो माँ बिलक उठती है। तो क्या आपको लगता है कि जिस हवाले से हमारा जो है जो हमारे जो दालें हैं इनकी कीमतें हैं और इसी तरह से हमारी मेडिसिन्स भी 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पर चली गई हैं सोनी, इस हवाले से भी देखा जाए तो क्या हमारे गरीबों का हक नहीं है कि किसी को हम ये मुकम्मल तौर पर जो है ये करें कि दवाई, गरीब की दवा और गरीब का राशन ये पूरा ही नहीं होता और बिजली के बिल आन पड़ते हैं सर पे। मेरे ख्याल से तहमीना मुझे ऐसे लगता है कि आजकल हर जिस तरह महंगाई का जोर शोर है कि हर बंदे का सरवाइव करना मुश्किल हुआ। ये नहीं कि हमारा मजदूर तबका, अगर जॉब होल्डर्स भी ऐसे जो ही हैं। 50,000 सैलरी लेने वाला बंदा है ना, उसने भी एक अपना बजट बनाया हुआ है और उसने जिस तरह का अपना बजट बनाया हुआ है ना, सैलरी जिस दिन आनी है ना पता है हाथ पे सैलरी आई है और अगले दिन पता भी नहीं है कहाँ पे गई है। सैलरी आती नहीं है, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, बाद में आपके पॉकेट में क्या है। 50 वाले हैं, 30 वाले हैं, 20 वाले हैं, सबका ये उनकी फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज को लेके चलना होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ एक कमाने वाला होता है और दूसरे खाने वाले होते हैं। एग्जैक्टली। कुछ ऐसे होते हैं कि जितने कमाने वाले हैं उतने ही खाने वाले और हैं। तब भी पूरी नहीं पड़ रही होती किसी की, नहीं पड़ रही होती कि दौर ही इतना मुश्किल वक्त आ चुका है सब पे, मजदूर हैं या जो भी हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, जो मजदूर तबका होता है ना, वो जब अमीर लोगों के काम कर रहा होता है, अपर क्लास लोगों के या
मिडल में तो चले मजदूर भी आ जाते हैं कुछ, वो तो खुद भी सारा एक ही कुछ आ जाता है ना। हाँ, तो वो जब काम कर रहे होते हैं ना, उन लोगों में एक चीज़ का शौक पैदा हो जाता है, और वो शौक ये होता है कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना ज़रूर है, हाँ, क्योंकि ये पढ़ के कल को मेरे मालिक की तरह बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। आपने सॉरी टू इंटरप्ट, बिल्कुल बिल्कुल पेरेंट्स ऐसा ही सोचते हैं कि बीइंग अ मदर, मैं अगर माँ बनूंगी तो इंशाल्लाह तो मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि मेरे जो गोल अचीव ना कर पाई हूँ, मैं जो मेरे गोल्स मैं अचीव नहीं कर पाई अपनी ज़िंदगी में, आर्मी, डॉक्टर, ऐसा ही कुछ जो था सिलसिला हम मेरे पेरेंट्स मेरे लिए भी जहन में लेके चला करते थे। तो मैं भी अपनी औलाद के लिए ये चाहूँगी कि मेरे बच्चे ये बन जाएं, और क्यों ना वो गरीब सोचे कि आज ये बंदा इस जगह पर खड़ा है तो मेरी औलाद इस मुकाम पर पहुँचे। बिल्कुल तहमीना, ऐसा ही होता है कि सबका ये ख्याल होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ें, और वो मतलब कि बड़े प्रॉपर तरीके से ना माएँ उनको भेजती हैं तैयार करके, और उनकी तालीम पे बहुत फोकस करती हैं। ये तालीम ही तो है जो हमें निखार कर यहाँ तक लेकर आती है। और एक और बात सोनी, मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम किसी की राह में आसानी करते हैं ना, यानी कि कोई गरीब का बच्चा है ना, तो यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ तक देखा है कि किसी ठेले वाले का बच्चा जो है ना वो ऊपर को चला जाता है। मीन्स टू से दैट कि जब तरक्की और स्टडी के हवाले से बात की जाए तो बच्चे के मार्क्स कितने आ जाते हैं, वो जो है हायर ग्रेड्स पे चला जाता है। एक वो बिजनेसमैन जिसका बाप बहुत अर्न कर रहा है, वो चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, उसका बच्चा पढ़कर किसी मंजिल को हासिल करे, वो नहीं कर पा रहा होता बनिस्बत उस बच्चे के जिसके बाप ने ठेला लगाया, वो जिसको पेंसिल भी मांग कर, हाँ। जिसको पेंसिल भी मांग कर लिखने को मिली, जिसको कागज भी छीन कर लिखने को मिला, उसके अंदर एक जज्बा होता है, जज्बे की आग उसको उभार कि मैंने ये करना है तो करके रहना है। और तहमीना, उसको अपने माँ बाप की मेहनत नजर आ रही होती है कि मेरे माँ बाप ने 16, 18 साल, 20 साल मेरे पीछे कितनी मेहनत की है। मेरी माँ मुझे किस तरह पेंसिल लेके देती है, मेरे बच्चों को पेंसिल चाहिए, कॉपी चाहिए, बुक चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स में ही बच्चे कामयाब हों। प्राइवेट स्कूल में नो डाउट के जो आपकी तालीम है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है, हो सकता है हमारे नाज़रीन को बुरा लगे, उनमें भी सिलेबस होते हैं, सिलेबस में से कवर करना होता है, पूरी बुक नहीं होती। जबकि गवर्नमेंट सिस्टम में ये होता है कि बुक होती है और पूरी बुक को कवर करना होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह और रही हैं आप। हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टॉप पे गए हैं और गुरबा के गए हैं। अब ये नहीं है कि अमीरों के गए हैं, अमीरों के ज़रा अय्याशी में पड़ जाते हैं, थोड़ा वो चिल करते हैं, तालीम पे इतनी तवज्जो नहीं देते। पैसा है तो चल जाएगा जिंदगी, उन्हें पता कि हमारे बाप का पीछे पैसा है, तो गुरबा को पता था कि हमारे बाप ने इतनी मेहनत किया, हमने अपने बाप को मैं कुर्बान जाऊं उस माँ के हाथों पे जिसने सिलाइयाँ कर करके ना, जिसने सिलाई कर करके अपनी नज़र तक गवा दी एक बेटी डॉक्टर बनाने के लिए। मैं कुर्बान जाऊं उस माँ के हाथों पे, मैं कुर्बान जाऊं उस माँ की नज़रों पे जिसने अपनी नज़र अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर दी। और खुदारा अपनी माँओं को अपनी आंखों का नूर समझा करें। आपके बाप आपका असासा होते हैं। आपकी, अगर आपने इस दुनिया को देखा है ना, सिर्फ अपनी माँ की नज़र से देखा करें, अपनी माँ को अपनी औलाद की नज़र से देखा करें, फिर मोहब्बत की इंतहा नहीं रहेगी, आपको माँ से इतनी मोहब्बत हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपने कामयाबी हासिल करनी है तो माँ से मोहब्बत ना छोड़ें, आपके पीछे कामयाबी भागेगी। अरे यार ना करो, मैं बड़ी इमोशनल हो रही हूँ, मुझे अपनी अम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आपने कामयाबी का दामन थामना है, अपने बाप को मत छोड़ें, अपने बाप की मोहब्बत को मत छोड़ें। मैंने वहाँ भी देखा है कि एक डॉक्टर, उसका फादर रो के कह रहा है कि मेरे पुत्र दी इन्नी सैलरी है, मेरा पुत्र ऐ करता है, लेकिन उन्हें 40,000 की गड्डी ले ली है, उन्हें मैनू कोल नहीं रखा, बाप को निकाल दिया। आप किसकी वजह से दुनिया पे आए, आपने उसको ही निकाल दिया। ध्यान रखें, ये उस डॉक्टर के लिए मैसेज है, उस डॉक्टर के लिए ये मैसेज है। आज
आपने सर अपने फादर को घर से निकाला, कल को आपकी औलाद कल निकालेगी। आपकी बारी आने वाली है, इंतजार करिएगा, आपका बेटा भी डॉक्टर होगा, एज इट इज आप भी सड़क पर आएंगे। वक़फ़ाते अमल है दुनिया। बिल्कुल तहमीना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन के। और ऐसा ही है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट, गांव में रहने वाले जब यूनिवर्सिटीज़ का मुंह देखते हैं ना, गुरबा के ख़ास तौर पे बच्चे, मजदूर तबके के बच्चे, तो माँ बाप पीछे बड़े शौक से जाते हैं कि हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी पढ़ता है, हम उसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त वो अमीर लोग अमीर दोस्तों में बैठ के अपने माँ बाप को नहीं पहचानता। आपके बाप की माँ की पूरी जिंदगी है और आप यूनिवर्सिटी में जाके बदल गए हो। कोई खौफे खुदा करें, ऐसा ना करें। वो असासा, जिनका असासा होते हैं आप उनको पहचानते नहीं है? कैसे हो सकता है? जिस माँ ने अपने वजूद के साथ कपड़ा ना लगाया, आपको दिया, आप पे खर्च किया, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरा बेटा, आज आप किसी मुकाम पर खड़े होने से पहले ही उनको धकेल रहे हैं, अपने बाप की फटी हुई जूती को देख के हंस रहे हैं, अपनी माँ को साथ चलाना पसंद नहीं करते हैं। नहीं, रॉन्ग वे, दिस इज रॉन्ग वे। आपकी माँ, अपनी माँ को साथ चलाएं और फख्र महसूस किया करें कि ये मेरी माँ है। हाँ, और अपने बाप के साथ अकड़ कर चला करें। आपका बाप है जिसने दुनिया दिखाई है आपको। कौन दिखाता है? किसकी इतनी हिम्मत होती है आपको दुनिया दिखाए? नहीं दिखा सकता कोई, आपके पीछे ही नहीं खड़ा होता। आपको सारे डिग्रेड ही करने वाले हाँ जी, होते हैं। exactly, आप बिल्कुल कोई ऐसी बात भी है। काम कर रहे हो ना, उन्होंने कहना ये काम ही नहीं ठीक है, क्यों कर रहे हो, छोड़ दो ये काम। वाहिद एक माँ बाप है जिसने कहना बेटा करो, तुम कर सकते हो। कहाँ और से? जब करके दिखाते हैं ना, वही लोग आ जाते हैं हमारे पीछे, हमारे हाँ साथ। जी, हाँ जी, हमारे एक selfie रिश्तेदार हो है। जाए। हाँ, हमारे रिश्तेदार है, हमारी बहन की बेटी है, हमारे भाई की बेटी है, और ये तो हमारी अपनी बेटी है। असल में अंदर से जल रहे होते हैं, बाहर से मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, और ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम जॉब के हवाले से था। अंदर की बात बाहर निकालना भी बहुत बड़ा सुकून होता है, क्योंकि जब अंदर की बात बाहर निकलती है ना, तो हम बींगा जो है होस्ट बात करूँ तो मुझे बहुत सुकून आता है। ये आप लोगों के लिए मैसेज है जो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। माँ बाप के लिए दुनिया को छोड़ दिया करें, लेकिन दुनिया के लिए माँ बाप को छोड़ देना आपके लिए जलालत का बायस बन सकता है।